آپ کو بتائیں کہ ڈیڈ لائن ختم، تجاوزات کے خلاف آج سے کریک ڈاؤن شروع ہوگا۔ لاہور کی سڑکوں کو تجاوزات مافیا کے چنگل سے آزاد کرایا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا بلا تفریق ایکشن کا حکم، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں نے تیاری کر لی۔ تاجر برادری نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کی حمایت کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈیڈ لائن ختم، تجاوزات کے خلاف آج سے کریک ڈاؤن شروع ہوگا۔ لاہور کی سڑکوں کو تجاوزات مافیا کے چنگل سے آزاد کرایا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا بلا تفریق ایکشن کا حکم، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں نے تیاری کر لی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ساجد علی سے۔ جی ساجد علی، آگاہ کیجیے گا۔ شہر لاہور میں بڑھتے ہوئے ٹریفک مسائل اور انتظامی مسائل کے حل کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے ایک حکمت عملی بنائی گئی تھی، جس کے سلسلے میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے از خود نوٹس لیتے ہوئے آج سے تقریباً 3 دن پہلے تجاوزات کو رضاکارانہ طور پر ہٹانے کے لیے جو تجاوزات مافیا ہے ان کو ہدایات کی تھی۔ یہ تقریباً 48 گھنٹے کی مہلت دی گئی تھی، جو 48 گھنٹے کی مہلت کل ختم ہوگی۔ اس کے بعد آج نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 24 گھنٹے کی مزید توسیعی مہلت بھی دی گئی تھی، جو کہ اب ختم ہو چکی ہے، لیکن شہر بھر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کچھ اقدامات ہمیں جو تجاوزات مافیا اس کی جانب سے نظر نہیں آئے۔ اب یہ مہلت تو ختم ہو چکی ہے، محکمہ بلدیات ہے جو اس کے ساتھ ہی ساتھ پولیس جو ہے یہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہے۔ ایک گرینڈ آپریشن جو ہے تجاوزات مافیا کے خلاف شروع کیا جائے گا۔ اس حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے خصوصی طور پر ہدایات کی گئی ہیں کہ یہ جو آپریشن ہے اس کو بلا امتیاز طور پر سر انجام دیا جائے اور کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ عوام سے اور جو ساتھ ہی ساتھ تجاوزات مافیا ہے اس سے بھی ایک التماس کیا گیا ہے کہ یہ بھی جو محکمہ بلدیات ہے اس کے ساتھ تعاون کریں، تجاوزات کو ہٹانے میں ان کا ساتھ دیں اور تاکہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی جو ہے نہ کی جائے۔ تاجر برادری کی جانب سے بھی ایک اچھا رسپانس دیا گیا تھا اور تاجر برادری کی جانب سے جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ جو جامعہ گرینڈ آپریشن کرنے کا فیصلہ ہے اس کی حمایت کر دی گئی تھی اور جو بھی دکاندار ہیں، جو بھی مختلف مارکیٹس کے جو صدور ہیں ان کی جانب سے دکانداروں کو خصوصی طور پر یہ ہدایت کی گئی کہ وہ جو حکومت پنجاب ہے ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی اپنی مارکیٹ سے اپنی اپنی دکانوں سے تجاوزات ختم کر دیں تاکہ کوئی غیر یقینی۔ ٹھیک ہے ساجد علی، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب کے محسن کی ڈبل سپیڈ، لاہور میں ترقیاتی کاموں کا جال، گڑھی شاہوں میں فلائی اوور بنے گا، ریلوے اسٹیشن کی جانب انڈر پاس بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 3 ارب 95 کروڑ لاگت آئے گی، نگران وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی۔ ایل ڈی اے نے گڑھی شاہو ٹریفک مینجمنٹ پلان پر مشتمل 3 ارب 95 کروڑ کی لاگت کا PC1 حکومت پنجاب کو ارسال کر دیا ہے۔ ایل ڈی اے نے گڑھی شاہو پر مختلف پلان پر کام کیا، جس کے بعد نیسپا کی مشاورت سے حتمی پلان پیش کیا گیا ہے۔ گڑھی شاہو پر انڈر پاس فلائی اوور کے ساتھ چوک کی ری ماڈلنگ بھی ہوگی۔ ایل ڈی اے نے گڑھی شاہو چوک پر ٹریفک کاؤنٹ بھی مکمل کر لیا ہے۔ منصوبے کے PC1 کی منظوری کے بعد کاسٹ کلیئرنس EIA رپورٹ بھی جمع کروائی جائے گی۔ منصوبے کی تکمیل سے چوک پر مجموعی طور پر 2.5 لاکھ سے زائد ٹریفک کو فائدہ پہنچے گا۔ شہر کی 6 اہم شاہراہوں پر پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنانے کی منظوری، قادر توپاش چوک، گجومتا، نشتر، کھوکھر اور جوڑے پل چوک پر یو ٹرن بنیں گے۔ ملتان روڈ کی ہیوی ٹریفک کو M2 موٹر وے کی طرف موڑنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت لاہور میں ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور کے 6 مصروف ترین چوک پر ٹریفک کی روانی کے لیے پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنانے کی منظوری دیتے ہوئے 19 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی۔ قادر توپاش چوک، گجومتا چوک، نشتر چوک، کھوکھر چوک اور جوڑے پل چوک پر یو ٹرن بنائے جائیں گے۔ اجلاس میں بابو سابو ٹول پلازا شفٹ کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ ملتان روڈ ٹھوکر نیاز بیگ کے داخلی راستے پر رش ختم کرنے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ہیوی ٹریفک کو براہ راست M2 موٹر وے پر رواں کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ جرائم پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ، لاہور کی 10 چوکیاں تھانے میں تبدیل ہوں گی۔ تھانہ نشتر کالونی اور فیکٹری ایریا کی نشاندہی کر دی گئی۔ باغبان پورہ میں تھانہ شاہد شہید بنے گا۔ تھانہ چونگ، ڈرائیو ان، جیا بگا، کاہنا کی چوکی، سوئے اصل اور ہلوکی کو تھانہ بنایا جائے گا۔ جی آپریشنز کی جانب سے جاری کردہ مراسلے کے مطابق تھانہ نشتر کالونی اور فیکٹری ایریا کے علاقوں میں تھانہ پنجاب سوسائٹی بنے گا۔ باغبان پورہ کے علاقے کو تقسیم کر کے تھانہ شاہد شہید بنے گا، جبکہ تھانہ چونگ کی چوکی شیر شاہ کو تھانہ بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ تھانہ رائیونڈ کی چوکی جیا بگا، تھانہ کاہنا کی چوکی سوئے آسل اور ہلوکی کو تھانہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح تھانہ شاہترہ کی چوکی بیگم کوٹ، تھانہ کوٹ لکھپت کی چوکی رکھ چندرائے
जाए और थाना निश्तर कॉलोनी की चौकी सब्जी मंडी को थाना बनाने की सिफारिश की गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जराइम की रोकथाम के लिए बड़े थानों को आबादी के लिहाज से तकसीम करके नए थाने बनाने की जरूरत थी। वज़ीर आला के हुक्म पर तमाम थानों की अपग्रेडेशन, रवां साल में थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। आईजी पंजाब ने 31 दिसंबर से पहले काम मुकम्मल करवाने और सामान की खरीदारी में शफाफियत के लिए 21 टीमें तश्कील दे दी हैं। पंजाब पुलिस के 737 थानों को जदीद तर्ज पर मुंतकिल करने की डेडलाइन पर अमल दरामद और फंड्स के शफाफ इस्तेमाल के लिए 21 टीमें तश्कील दे दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक आईजी पंजाब ने DIGs की सरबराही में 21 टीमें तश्कील देकर इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया। लाहौर के थानों की इंस्पेक्शन DIG इनाम वहीद और AIG एहसन सैफुल्लाह कर रही हैं। इंस्पेक्शन टीमें अब तक फंड्स के इस्तेमाल, थानों में होने वाले काम और खरीदारी के हवाले से चेकिंग करेंगे। सामान के मायार, खरीदारी का तरीकाकार और SOPs के हवाले से 20 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 1 अरब 94 करोड़ के फंड्स स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस पर मुंतकिली के लिए जारी किए थे। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस में थानों को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। टीचिंग हस्पतालों में इंतजामी ढांचे की रिस्ट्रक्चरिंग, जदीद इंतजामी मॉडल मुतारिफ करवाया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया जाएगा। 20 करोड़ से जायद खर्च आएगा। मंसूबे से माली अमूर को शिफाफ बनाने में भी मदद मिलेगी। हुकूमत पंजाब का सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम, टीचिंग अस्पतालों के इंतजामी ढांचे की रिस्ट्रक्चरिंग करके इसे जदीद खतूत का हामिल बनाने का मनसूबा तश्कील दे दिया गया है। टीचिंग अस्पतालों के इंतजामी शोबे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया जाएगा, जिससे इंतजामी और माली अमूर को शफाफ बनाने में मदद मिलेगी। सूबे भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इंतजामी ढांचे की रिस्ट्रक्चरिंग के मनसूबे पर 20 करोड़ से ज़ायद खर्च होंगे। टीचिंग अस्पतालों के इंतजामी ढांचे की रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए इंतजामी अमूर को बेहतर बनाने से मरीजों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, सिविल सेक्रेटेरिएट के डेली वेजर मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया। माली, वाटर केयर, सैनिटरी वर्कर, चौकीदार, गेट कीपर खुश। महकमा S&JD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ हुकूमत की जानिब से डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए बड़ा फैसला किया गया है। सिविल सेक्रेटेरिएट में तैनात तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया गया है। सिविल सेक्रेटेरिएट के डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर करके वर्कमैन बना दिया गया है। महकमा S&JD ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेगुलर होने वाले मुलाजमीन में माली, सैनिटरी वर्कर, चौकीदार और गेट कीपर शामिल हैं। गैर मुल्की दौरों पर जाने वाले अफसरान को डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। वफाकी हुकूमत के फैसले पर पंजाब हुकूमत ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुकूमत के फैसले पर महकमा खजाना पंजाब ने हुक्म जारी किया है कि बैरून मुमालिक सेमिनार और दीगर तकरीबात में शिरकत करने वाले अफसरान डेली अलाउंस नहीं ले सकेंगे। डेली अलाउंस सिर्फ सरकारी अखराजात पर बैरून मुल्क जाने वालों को मिलेगा। पंजाब हुकूमत के अखराजात पर जाने वाले सिर्फ 1 हफ्ते का डेली अलाउंस ले सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने बेशतर अफसरान की जानिब से अलाउंस लेने की शिकायत का नोटिस लिया था। महकमा खजाना पंजाब के हुकाम का कहना है वफाकी हुकूमत के फैसले पर पंजाब में भी अमल करवाया जाएगा। इस हवाले से AG ऑफिस को आगाह कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ खत्म। आटा, चीनी, घी के बाद दालों की किल्लत हो गई। दाल माश, दाल मूंग, दाल मसूर के शेल्फ खाली। आटा, चीनी और चावल के दाम ओपन मार्केट से भी जायद है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की किल्लत देखी जा रही है। कई हफ्तों से दाल माश, दाल मूंग, दाल मसूर, साबत मसर समेत दीगर दालें दस्तयाब नहीं हैं। अगर कभी कभार दालें मिले भी तो कीमत सुनकर शहरियों का सर चकरा जाता है। मेन चीज़ें नहीं रखते हैं, वो ये सरफ ले लेते हैं। ये छोटी शीशी ले लो, वो बाहर से मिलती है 60 रुपए की, ये 250-250 रुपए की लगा के दे देते हैं। हुकूमत की तरफ से आने का क्या फ़ायदा, इन्होंने अपना प्रॉफिट लेकर निकालते हैं। निजामाबाद, गाजियाबाद, अल्ताफ कॉलोनी के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की किल्लत है। गढ़ी शाहू, फतेहगढ़, मनावा, जल्लो मोड़, अल फैसल कॉलोनी में भी दालें मैसर नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल और आटे की कीमतें भी बुलंद तरीन सतह पर है, जिसकी वजह से गरीब तबका परेशान है। शहरी कहते हैं 1420 रुपए का 10 किलो आटा और 325 रुपए से 432 रुपए किलो चावल नहीं खरीद सकते। हुकूमत गरीब तबके को रिलीफ दे। कैमरामैन मोहम्मद साकिब के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आपको बताएं, मखसूस दुकानों से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए दबाव का मामला। DC लाहौर ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वालिदैन को मखसूस शॉप से खरीदारी के लिए मजबूर करने वाले स्कूलों को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे।
कमिश्नर लाहौर का नोटिस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को मुंतखब बुक शॉप से किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को कार्रवाई करने के लिए वाजिया अहकाम जारी कर दिए हैं। मौसमी सरमा की छुट्टियों में मुतल्लिका प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्ट 1984 के मुताबिक स्कूल किसी भी किस्म के इजाफी चार्जेस बच्चों से वसूल नहीं कर सकते। कार्रवाई का फैसला मुतअद्दिद वालिदैन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को दरख्वास्तें जमा करवाने पर किया गया। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर का कहना है कि स्कूलों का काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। ट्यूशन फीस के अलावा बच्चों से किसी भी किस्म के अलग से चार्जेस वसूल करना दुरुस्त नहीं। लाहौर के 100 से ज्यादा स्कूल सरबराहान बच्चों की वेलफेयर पर बजट खर्च करने में नाकाम। स्कूलों के पास 10-10 लाख से ज्यादा के फंड्स ताहाल मौजूद हैं। स्कूल सरबराहान का कहना है कि फंड्स की मंजूरी के लिए हिस्सा देना पड़ता है। बगैर मंजूरी फंड्स खर्च करने पर इंक्वायरियां शुरू कर दी जाती हैं। के 100 से ज्यादा स्कूल्स में बच्चों पर फंड्स खर्च करने की बजाय कई साल से स्कूल्स के अकाउंट में ही मौजूद हैं। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान ने नोटिस लेकर स्कूल से फंड खर्च न करने का जवाब तलब कर लिया है। दस्तयाब फंड्स में से 50% फंड्स दूसरे स्कूल्स को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। तमाम स्कूल्स को माली साल के इख्तिताम पर फंड्स खर्च करने की हिदायत जारी कर दी गयी। स्कूलों ने इंक्वायरी के डर से फंड्स इस्तेमाल ही नहीं किए। स्कूल सरबराहान के मुताबिक फंड्स किसी भी मंसूबे पर लगाने के लिए मंजूरी लेना पड़ती है। फंड्स की मंजूरी के लिए हिस्सा देना पड़ता है। बगैर मंजूरी फंड्स खर्च करने पर इंक्वायरियां शुरू कर दी जाती हैं। लेस्को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अरबों रुपए की बिजली गायब होने का इंकशाफ हुआ है। नेपरा अहदाफ के हसूल में नाकामी की वजह से कंपनी को 1 साल के दौरान बिजली चोरी की कीमत में 23 अरब रुपए का खसारा हो गया। की जानिब से नेपरा के मुकर्ररा अहदाफ हासिल न करने पर अरबों रुपए का खसारा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपरा ने लेस्को को 8% तक लाइन लॉसेस मुरत्तिब करने का हदफ दिया था। ताहम लेस्को गुज़िश्ता साल के दौरान 11.29% तक नेपरा अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो सकी, जिसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ज़राए ने बताया कि अरबों रुपए का मुसलसल नुकसान होने पर नेपरा ने लेस्को के लाइन लॉसेस अहदाफ कम करके 10% तक कर दिए हैं। लेस्को आइंदा 2 माह में नेपरा के नए मुकर्ररा अहदाफ को हासिल करने में कामयाब होगी। नेपरा ने एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मुसलसल ताखीर पर अहदाफ पर नजरसानी की। सोशल सिक्योरिटी में अद्वियात खरीदारी के दौरान पेपरा रूल्स की खुलेआम खिलाफ वर्जी। अस्पतालों और डिस्पेंसरियों ने जुलाई से नवंबर के दौरान 50 करोड़ रुपए की अद्वियात पेपरा कवानीन के बरक्स कोटेशन पर खरीदी है। खरीदारी के लिए पेपरा रूल्स के मुताबिक 2 लाख रुपए तक बजरिया कोटेशन, जबकि बड़ी खरीदारी के लिए टेंडर लाजमी है। जरा के मुताबिक अस्पतालों और डिस्पेंसरी में मुबैना मनपसंद डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदारी ऑडिट डिपार्टमेंट की मिली भगत से की गई। 50 करोड़ रुपए की खरीदारी मनपसंद डिस्ट्रीब्यूटर से 3 कोटेशन के जरिए की जाती है। सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस रवां साल मई और अगस्त में टेंडर के जरिए अद्वियात खरीदारी में नाकाम रहा। मुबैना बेजाब्तगियों पर सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस इंतजामिया की खामोश तमाशाई बन गई है। गुलकार आतिफ असलम के गिर्द FBR का घेरा तंग। आतिफ असलम एडवांस टैक्स की अदम अदायगी, इनकम टैक्स गोशवारे और ऑडिट के लिए रिकॉर्ड जमा न करवाने पर FBR के रिडार पर आ गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गुलकार को इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने पर नोटिस जारी करके 22 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। बताया गया है कि आतिफ असलम को मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद साल 2020 के ऑडिट के लिए रिकॉर्ड भी जमा नहीं करवाया गया, जिस पर FBR ने आतिफ असलम पर जुर्माना भी आयद कर दिया है। आतिफ असलम दूसरे क्वार्टर का एडवांस टैक्स भी जमा करवाने में ताहाल नाकाम है। निगरान पंजाब हुकूमत के तारीखी मुकामात की बहाली अव्वलीन तरजीह वर्ल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी की जानिब से खड़क सिंह हवेली की मुरम्मत और बहाली का काम तेज कर दिया गया है। डायरेक्टर कंजर्वेशन नजमुल साकिब ने DG कामरान लशारी को ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड सिटीज एंड हेरिटेज एरिया अथॉरिटी की जानिब से खड़क सिंह हवेली की तज़ीन व आराइश तेज कर दी गई है। DG वर्ल्ड सिटीज कामरान लशारी को ब्रीफिंग में बताया गया है, ये इमारत महाराजा रंजीत सिंह के बेटे महाराजा खड़क सिंह के अहद में तमीर हुई थी, जो अपने जमाने की एक शानदार हवेली मानी जाती है। इस तारीखी इमारत ने अपने जमाने के विरसे को कायम रखा है। बहाली के काम में लाइब्रेरी समेत दीगर हिस्सों को भी पुरानी हालत में बहाल किया जाएगा। ये जगह जो जिसकी हिस्ट्री है, निचला पोर्शन जो है वो मुग़लों के ज़माने का है, उसकी लाइब्रेरी को हम अब 5-6 गुना बढ़ा रहे हैं और उसकी जो स्पेस जो पहले मैं बता रहा हूँ जंक यार्ड या गोदाम बना हुआ था वो ठीक किया है
اور اوپر والی جگہ جو ہے یہ کھڑک سنگھ حویلی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کھڑک سنگھ حویلی کے ڈھانچے کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حویلی کے داخلی حصے کی تعمیر، چھتوں کی مرمت، چونے کا پلستر کا کام، لکڑی اور اینٹوں کی چٹائی کا کام کیا جائے گا۔ حویلی کے برآمدے میں بیٹھنے کی جگہ، ملٹی فنکشنل ہال اور میوزیم کی مرمت کا کام بھی مکمل کیا جائے گا۔ ریسٹوریشن جو ہے وہ کام شروع کیا ہے، اور وہ سامنے اب جہاں ہم کھڑے ہیں آپ دیکھیں اور دکھائیں لوگوں کو کہ یہاں چونا لگا ہوا تھا، اس کے پیچھے اتنا زبردست فریسکو ورک تھے، یہاں کی چھتیں کیسے تھیں، فرش کیسے تھے، ان کے اوپر سیمنٹ ہوا تھا۔ ہم نے اب ساری اس کی پرانی ہسٹری میں جا کر ایک ایک چیز کو اسٹڈی کیا ہے۔ نگران پنجاب حکومت کی کاوشوں سے وال سٹیز اتھارٹی قومی ورثے کو اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھنے کے لیے تمام تر کاوشیں بروئے کار لا رہی ہے۔ کھڑک سنگھ حویلی کی مرمت کا کام 2024 مارچ تک 9 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کر لیا جائے گا۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ہمراہ کلیم اختر، سٹی 42۔